Evangelist Rambabu welcomes you to Face with Jesus Conference on the 4th and 5th of August. Venue is Damodar Hall, N.M. Joshi Vidya Sankul, Dr. Baba Saheb Ambedkar Road, Parel, East Mumbai. Come and meet Jesus face to face and be transformed and receive your miracles and anointing. तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरे महिमा से, तेरे सावत से, फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरे महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे. Lord, I worship you for your wonderful presence here. प्रभु हम आपकी बेहतर उपस्थिति के लिए आपकी आराधना करते हैं. Holy Spirit, we welcome you in the name of Jesus. पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में. We make you the Lord of this meeting, Lord. प्रभु इस सभा का प्रभु और स्वामी हम आपको बनाते The हैं. Bible says the Lord is a spirit. बाइबल कहती है परमेश्वर प्रभु तो आत्मा है. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. और जहाँ पर प्रभु का आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है. The Holy Spirit will make you the Lord over this place. और पवित्र आत्मा इस जगह पर तुझे प्रभु बनाएगा. Lead us to the Lordship of Jesus Christ. और हमारी अगुवाई करें ताकि हम यीशु मसीह की प्रभुता में आगे बढ़ें. We worship you, Father. पिता हम आपकी आराधना Our करते faith हैं. will receive the ministry of the Holy Spirit in our midst. विश्वास से हम पवित्र आत्मा की सेवकाई को अपने बीच में स्वीकार Our करते faith हैं. reject every hindrance in the name of Jesus. विश्वास से हर एक बाधा और रुकावट को हम दूर करते हैं यीशु के नाम में. And devil and sickness and disease, I declare your power over these people in this place is destroyed in the name of Jesus Christ the Lord. शैतान, बीमारी, दुर्बलता, हम आज इस जगह पर इस बात को घोषित करते हैं कि लोगों की जिंदगियों पर जो तुम्हारा अधिकार है उसे हम दूर करते हैं यीशु के नाम में. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Come on, everyone, say one loud amen. सभी जोर से आमीन कहें. Loud amen. आमीन. एक बार प्रभु के लिए जोर से ताली बजा के. Please be seated. John chapter 2. यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and the disciples had also been invited to the wedding. और फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी. यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine."
और जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। Dear woman, why do you involve me? Jesus replied, my time has not yet come. यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। His mother said to the servants, do whatever he tells you. और उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। Nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. और वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। Jesus said to the servants, fill the jars with water, so they filled them to the brim. यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। Then he told them, now draw some out, take it to the master of the banquet. They did so, and the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, everyone brings out the choicest wine first, and then cheaper wine after the guests are too much to drink. But you have saved the best till now. और तब उसने उससे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वो कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। This is the first of his miraculous signs Jesus performed at Cana in Galilee. He thus revealed his glory, and the disciples put their faith in him. यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। Hallelujah. हालेलुया। Come on, एक बार हाथ उठाएगा सब। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Okay. This is a famous story which we all know by heart. ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना है जो हम सभी हमें पता है। The Bible says one day there was a wedding in a place called Cana. और बाइबल बताती है कि गलील के काना में एक विवाह था, शादी थी। And Jesus was invited, his disciples were invited. और वहां पे यीशु मसीह को बुलाया गया था और उनके चेलों को भी बुलाया गया था। And the wedding is going on. और ये शादी चल रही थी। And suddenly they realized the wine was over. और अचानक से उन्होंने देखा कि जो दाखरस है वो खत्म हो गया। And then, Mary came and said to Jesus, they have no wine. और फिर मरियम आती है, यीशु मसीह से कहती है कि देख भाई, इनका दाखरस जो है खत्म हो गया। And Jesus looked around, he said, woman, my time has not come. और यीशु मसीह ने उसकी ओर देखकर कहा कि हे स्त्री, मेरा समय अभी नहीं आया। And then the Bible says that she said, oh, do whatever he says. और फिर बाइबल कहती है, मरियम ने कहा कि जो कुछ वो तुमसे कहे वैसा करो। This is a famous story which we all know by heart. ये एक प्रसिद्ध घटना है, एक कहानी है जो हम सभी जानते हैं, याद है हमें। Listen carefully for a few minutes because the Holy Spirit wants to speak to you face to face about this year, what happened to you and how you are going to get ready for the next year in your life. और इसीलिए बहुत ही ध्यान से इन बातों को सुने, क्योंकि पवित्र आत्मा बताएगा कि इस साल आपके जिंदगी में क्या हुआ है और आने वाले साल में आपके जीवन में क्या होने वाला है। So the Bible says that there was a wedding in this town called Cana. और इसलिए बाइबल कहती है कि काना नाम के नगर में जो है एक शादी थी। And the Bible says that Jesus was invited and his disciples. और बाइबल बताती है कि वहां यीशु मसीह को और उनके चेलों को निमंत्रित किया गया। I like this very much. और ये बात मुझे अच्छी लगती है। The Bible says Jesus was invited and his disciples. और फिर ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह वहां निमंत्रित थे और उनके चेले भी। Listen carefully. ध्यान से सुने। Jesus does not go anywhere where he is not invited. देखिए, जहां पर यीशु मसीह को बुलाया ना जाता वहां पर यीशु मसीह कभी भी नहीं जाता। Jesus went there because he was invited. और यीशु मसीह उस शादी में इसलिए गए क्योंकि वो उन्हें वहां बुलाया गया। Everybody says Jesus will go only when he is invited. और सभी कहेंगे यीशु मसीह तभी जाएगा जब उनको बुलाया जाएगा। बोलो। जोर से बोलो। जोर से कहें, यीशु मसीह तभी जाएंगे जब उनको बुलाया जाएगा। आमंत्रण राइट। और यीशु मसीह तभी जाएंगे जब उनको निमंत्रित किया जाएगा। निमंत्रित का बोलो। यीशु कब जाएगा? बोलो जोर से, यीशु कब जाएगा? कुछ लोग बोलते हैं अगर यीशु को मैं चाहिए ना, उसको मेरे पास आने के लिए बोलो। अगर यीशु मेरी जिंदगी बदलना चाहते तो उसको आने के लिए बोलो। निमंत्रण करो, वो आएगा, तेरी जिंदगी बदल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। निमंत्रण करो, यीशु आएगा। घर पे निमंत्रण करो, यीशु आएगा। दिल में निमंत्रण करो, यीशु आएगा।
सेवा में निमंत्रण करो, आएगा। अगर एक बार यीशु आया ना, सब बदल जाएगा। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Jesus was invited, that's why he went there. और यीशु मसीह को निमंत्रित किया गया था, इसलिए वो वहां गए थे। Now the wedding is going on. अब देखिए शादी चल रही है, फुल गाना गा रहे हैं, डफली बजा रहे हैं और नाच रहे, डक 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 डक, you know, बांगड़ा, everything is going on, dances, everything is going on, wedding is going on. और यहाँ पे शादी के समय में नाच गाना और धमाल हो रहा था, सब चीजें चल रही थी। See, like we have in our weddings, you know, in South India, they serve some things with the time. This, South Indian wedding is not complete with some good paisam and all these things. They should serve in the dessert. I don't know what is Maharashtrian wedding, which is important. I have no idea. और हमें खैर महाराष्ट्र के तो विवाह के तरीका पता नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत में जब भी शादी होती है तो बीच बीच में लोगों को कुछ दिया जाता है खाने के लिए, खासकर वो जो खीर बनती है जिसको पायसम कहते हैं, वो लोगों को दिया जाता है। It's a kind of prestige when the wedding is going on. They keep serving those things. और ये बड़े गर्व की और सम्मान की बात होती है कि जब शादी चल रही है उसके बीच में जो मेहमान आए हैं उनको कुछ ना कुछ दिया जाए। In the same way, in the Israel, the custom is to the wedding they serve wine to people. और इसीलिए इजराइल में भी ये रिवाज है कि जब भी शादी होती है तो वो लोगों को दाखरस देते हैं। So wedding is going on, wine is being served. अब शादी चल रही है और लोगों को दाखरस मिल रहा है। Suddenly they come to know, अचानक से उनको ये पता चलता है wine is over. कि अरे दाखरस तो खत्म हो गया, Crisis came. और अब ये जो मुसीबत का समय आ गया। I have two questions here. अब यहाँ पे मुझे दो सवाल हैं आपके। Question number 1. पहला सवाल, how did the wine get over? अब ये जो दाखरस है ये कैसे खत्म हो गया? Maybe the guests who came are more than what they expected and wine is over. और ऐसा हो सकता है कि भाई इन्होंने सोचा होगा कि इतने मेहमान आएंगे, उससे ज्यादा आ गए और इसलिए शायद वो दाखरस खत्म हो गया हो। और या दूसरा ये है, the organizer of wedding would have said, Chalta, this much is enough, who will take more, or this much is enough. और जिसने जो शादी का घर था उन लोगों ने सोचा होगा कि अरे इतना दाखरस इतना ही बस हो गया, कहां लोग ज्यादा पिएंगे, इतना इतना काफी हो जाएगा। Where people will come. अरे लोग आएंगे भी कहां, नहीं आएंगे। This is enough for people. और जितना बन गया है बस उतने लोगों के लिए काफी होगा। Either crowd was more or the negligence on the side of the wedding manager. और या तो भीड़ ज्यादा आ गई होगी या फिर जो विवाह का प्रमुख था उसने थोड़ी लापरवाही कर दी होगी। I want to tell you, my brothers and sisters who are in the ministry, मैं आपसे कहना चाहता हूं वो भाई बहनों जो सेवकाई में हो, always have enough wine in your life. It doesn't matter whether the crowd is less or big, for you don't know how big the crowd will come in your life. और हमेशा अपने जीवन के दाखरस को कम मत होने दो, इतना भरपूरी से रखो, चाहे लोग थोड़े आए या ज्यादा आए, आपके पास दाखरस की भरपूरी होना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि कब एक बड़ी भीड़ आपके पास आ जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। How many heard about the Reinhard Bonnke? Anybody heard about the Reinhard Bonnke? आप में से कितने लोगों ने रेनॉल्ड बॉन्के का नाम सुना है? Okay, but Reinhard Bonnke, I was talking to him. और रेनॉल्ड बॉन्के से जब हम बात कर रहे थे, He was telling me, वो मुझसे कह रहे थे, Rambo, God had spoken to me that very soon I will preach to 1 million people. और उन्होंने बताया कि रैम्बो देखो, परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं जो है 10 लाख लोगों के सामने बहुत ही जल्दी प्रचार करने वाला हूं। And he said, do you know, Rambo, what I did? और उन्होंने कहा कि रैम्बो तुम्हें पता है मैंने क्या किया? I said, what did you do, brother? मैंने कहा भाई तुमने क्या किया? He said, first thing I did is I went and bought a PA system with which I can reach to 1 million people in one evening. और उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो है मैंने ऐसा साउंड सिस्टम लाया जिसकी आवाज इतनी तेज हो कि एक शाम में जो है 10 लाख लोगों को सुनाई दे। He said, I used to use this PA system, but 2 lakhs, 3 lakh people used to attend my meeting. और मेरे पास जो है 10 लाख लोगों के तक पहुंचने का साउंड सिस्टम था, लेकिन मेरी सभा में 3 लाख या 4 लाख ही लोग आते So थे। people used to laugh at me. Oh, Reinhard Bonnke is having a sound system for 1 million people, only 3 lakh people attending. और इसलिए लोग उन्होंने बताया कि लोग मुझे देखकर हंसते थे, कहते कि देखो रेनॉल्ड बॉन्के ने इतना बड़ा साउंड सिस्टम खरीदा है जिससे कि 10 लाख लोग सुन सके, लेकिन इनकी सभा में कभी 10 लाख लोग नहीं आए, 3 या 4 लाख लोग आते हैं। But he said, then I went to Lagos in Nigeria. और वो बताते हैं कि वो एक बार जो है लगोस नाइजीरिया में गए। He said, when I went to that meeting in Nigeria, suddenly 1 million people came in one evening. और उन्होंने बताया कि मैं नाइजीरिया में गया तो अचानक से एक ही शाम में 10 लाख लोग इकट्ठा हो गए। He said, Rambo, when 1 million people came, I was ready with for a sound system for 1 million people. और उन्होंने बताया रैम्बो देखो ऐसा हुआ कि जब 10 लाख लोग आए, मेरे पास 10 लाख लोगों के लिए साउंड सिस्टम तैयार था। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah.
जब लोग आएंगे तब साउंड सिस्टम नहीं, साउंड सिस्टम रखो, तब लोग आए तो तैयार होके रहेगा आप लोग. More crowd will come, I will pray more. No, pray more crowd will come. और ऐसा नहीं सोचे कि अरे नहीं, जब बड़ी भीड़ आएगी तो मैं ज्यादा प्रार्थना करूंगा. ऐसा नहीं है. इससे पहले कि भीड़ आए आप पहले प्रार्थना करें, ज्यादा प्रार्थना When the करें. need arises, I will pray. और लोग कहते हैं कि जब कोई जरूरत आएगी तो मैं प्रार्थना करूंगा. पास्टर इसके लिए प्रेयर करो, इसको दिस इज डिमन पोसेस्ड. और लोग आते हैं कहते हैं पास्टर इसके लिए प्रार्थना करो, इसके ऊपर दुष्ट आत्मा भूत है इसके ऊपर. आज नहीं, अगले हफ्ते, ये हफ्ता तैयार नहीं हुआ मैं. और पास्टर कहेगा नहीं नहीं, ये इसके लिए प्रार्थना मैं इस हफ्ते नहीं करूंगा, मैं अगले हफ्ते करूंगा क्योंकि अभी मैं तैयार नहीं हूं इस काम के लिए. ब्रदर आप चर्च में जाते हैं, बिलीवर्स है, आप चर्च में जाते हैं ना, सो आपके चर्च में यीशु के बारे में सिखाते हैं ना, मेरे घर में कोई शैतान का पीड़ित है, आप लोग अगर प्रेयर करो. आज नहीं, नेक्स्ट वीक. अभी प्रेयर नहीं किया, प्रिपेयर नहीं किया. क्या करता था? प्रिपेयर नहीं किया, क्या करता था? घर में मक्खी मारा था, घर में बैठ के. हाँ, be with the wine ready, for you don't know when the need will arise. हमेशा अपने आप में दाखरस की भरपूरी रखे क्योंकि आपको नहीं पता कि कब इसकी जरूरत आपको पड़ जाएगी. हालेलुया, हालेलुया. आप आकर रात 3 बजे मुझे उठाओ, बोलो ब्रदर राम बाबू प्रीच करो, प्रीच करोगे मिरेकल्स हो जाएगा. 3 बजे उठाओ, तैयार है. हम लोग एवर रेडी बैटरी है, एवर रेडी बैटरी. ये बैटरी तैयार रहना चाहिए कभी भी. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हाँ, so these people thought crowd may not come. और इन लोगों ने सोचा कि शायद इतनी बड़ी भीड़ तो नहीं आएगी. Crowd came और ऐसा हुआ कि भीड़ आ गई and the wine was not there. और दाखरस बिल्कुल नहीं था. And what happened when that happened? और जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ? बेइज्जती, बहुत बड़ी बेइज्जती हुई. इंसल्ट, बेइज्जती हुई. अरे शादी चल रहा है, बिरयानी खत्म. अभी 1000 लोग बैठे हैं खाने के लिए, बिरयानी खत्म. जो लोग इतना खा के गए ना उनके बारे में छोड़ो, लेकिन जिनके घर में शादी हो रहा है उनके बारे में सोचो. एक आके एक बकरा खा के गया. अभी 1000 लोग बचा है, उनको कौन खाना देगा? बेइज्जती हो जाएगा ना. इंसल्ट वाज हैपनिंग. और यहां पे बेइज्जती हो रही थी. When the need arises, are not ready with the supply, insult can come. देखिए, जब भी जरूरत आ पड़े और आप तैयार नहीं होंगे उसके समाधान के लिए तो एक बेइज्जती का सामना आपको करना पड़ेगा. Hallelujah. हालेलुया. I don't know when was it. Sometime back we were going via Bombay to Gujarat. और कुछ समय पहले जो है हम गुजरात जा रहे थे लेकिन हम बंबई होकर गए. Ankit, Francis, myself, our media man called Bibi, we were going to Gujarat. और भाई राम बाबू, अंकित और फ्रांसिस और इनके जो जितने भी मीडिया के लोग थे वो सब गुजरात जा रहे थे. I think 2 years back, I think probably. ये शायद 2 साल पहले की बात होगी. We were inside the airport and there was a place where they were having O2 spa where they do the foot massage. और हम लोग जो है एयरपोर्ट पर थे और वहां पे एक दुकान होती है वहां पर जिसको O2 स्पा कहते हैं, जहां पर वो पैरों की मसाज करते हैं, मालिश करते हैं. And when Ankit, Francis, myself, our media man, we were getting our foot massage done. और जब हम अंकित और हमारे फ्रांसिस और सारे मीडिया के लोग अपने पैरों की मालिश करा रहे थे, I saw something. मैंने वहां पे कुछ देखा. The person who was doing massage to my feet, वो व्यक्ति जो हमारे पैरों की मालिश कर रहा था, he was blind. वो अंधा था. And the one who was doing massage to my son, he was mute. और वो जो मेरे बेटे के पैर की मालिश कर रहा था वो गूंगा था. And they employ these kinds of people to give them job opportunities. और ये ऐसे लोगों को काम पे रखते हैं ताकि जो बेचारे अपंग हैं उनको पैसे वो कमा सके. So we finished massage and all, we were paying the bills. और हमने अपनी मालिश करा ली, उसके बाद हम वहां का पैसा दे रहे थे. Then I looked at Ankit. और तब मैंने अंकित की तरफ And देखा Ankit recognized what I want to do. और अंकित समझ गया कि अब मैं क्या करना I चाहता हूं. said to Francis and Ankit, they were there, we just can't go like this seeing these people. और हमने फ्रांसिस से कहा, अंकित भी वहीं था, हमने कहा देखो हम ऐसे ही यहां से इस जगह से नहीं जा सकते इन लोगों को चंगाई दिए बिना. I went to the manager. और फिर हम मैनेजर के पास गए. I said, sir, I'm a pastor. I want to pray Jesus will heal these people. और मैंने कहा देखिए श्रीमान, मैं पास्टर हूं और मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, यीशु मसीह इनको He चंगाई said, दे okay, देगा. okay. उसने कहा चलो ठीक है प्रार्थना करो. First I laid hands on the guy who was a mute. और सबसे पहले मैंने उस व्यक्ति के सिर पे हाथ रखा जो गूंगा था. And I command the mute spirit to come out. और मैंने आज्ञा दी कि उसकी गूंगी
आत्मा बाहर निकल जाए। Instantly he started talking right in the airport. और उसी समय वो जो है एयरपोर्ट पे ही बात करने लगा, बोलने लगा। Hallelujah. Hallelujah. I laid hands on the blind guy. उसके बाद जो व्यक्ति अंधा था, हमने उसकी आंख उस पर हाथ रखा। Instantly his blind eyes opened, he started seeing. उसी समय उसकी अंधी आंखें खुल गई और वो देखने लगा। Right in the airport in Mumbai. याद रखें, ये सारी बातें मुंबई के एयरपोर्ट पे हो रही थी। Hallelujah. हालेलुया। ऐसा नहीं कि you tell them, अच्छा तुम चर्च आ जाओ, हम चर्च में तुम्हारे लिए प्रेयर करेंगे। ऐसा हमने नहीं कहा कि पहले तुम चर्च में आ जाओ, चर्च में हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। Get ready with the wine because you don't know when the need will come. आप अपने दाखरस के साथ तैयार रहें, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब जरूरत आ पड़ेगी। Can I hear a hallelujah? Hallelujah. The wine is over. और यहाँ पे दाखरस खत्म हो गया। बेइज्जती. बहुत बड़ी बेइज्जती। What to do now? अब हम क्या करें? Then there was a woman. और तब एक स्त्री थी, A woman whom I honor very much. और एक ऐसी महिला जिसका मैं बहुत आदर करता Her हूँ। name is Mary. उनका नाम था मरियम, She is the mother of Jesus. और वो यीशु मसीह की माँ थी। And she went to Jesus and said, और वो जाती है यीशु मसीह के पास और कहती है they have no wine. कि देखो इनके पास दाखरस खत्म हो गया Now है। here I want to say something. अब यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। Many people say कई लोग कहते हैं that when the wine was over, कि जब दाखरस खत्म हो गया था, people went to Mary लोग जो है मरियम के पास गए and said, we have no wine. और उन्होंने उनसे कहा कि देखो दाखरस खत्म हो गया And है। then Mary went to Jesus. और उसके बाद मरियम जो थी वो यीशु मसीह के पास जाती And है, then Jesus did a miracle. और तब यीशु मसीह ने चमत्कार किया। Therefore, और इसीलिए we should go to Mary. तो हमारे को चमत्कार चाहिए तो पहले हमें मरियम के पास And आना Mary will go to पड़ेगा, Jesus. और फिर मरियम जो है यीशु मसीह के पास आएगी। Bible never says that. बाइबल ऐसा कभी नहीं कहती, Bible never says that anybody went to Mary. और बाइबल कभी ये नहीं कहती कि कोई मरियम के पास गया। Mary herself went to Jesus. मरियम खुद यीशु मसीह के पास गई। कोई मरियम के पास नहीं गया. I don't know which Bible they say. Read, they saying people went to Mary, Mary went to people. Nobody went to Mary. Mary herself went. हमें पता नहीं लोग ऐसा क्यों कहते, कौन सी बाइबल में लिखा है। वो लोग कहते हैं कि लोग जो है मरियम के पास गए, उसके बाद अपनी जरूरत बताई, और मरियम जो है वो यीशु के पास जाती है। ऐसा बाइबल में तो नहीं लिखा है। She said they have no wine. मरियम खुद यीशु मसीह के पास आके कहती है कि इनका पास दाखरस खत्म हो गया। What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? Woman, what does that to do with me? My time has not come. ये महिला, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं आया। That means यीशु ने चमत्कार करने का इनकार कर दिया. मेरा बाइबल में लिखा है, एक बार हिंदी में पढ़ा पता कैसा है, जब मरियम ने बोली तो यीशु ने क्या बोला? हाँ माँ मैं कर दूंगा. बोला क्या? बोलो. और यहाँ पे लिखा है कि जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय नहीं आया. हेलो भाई, इतना गुस्सा हो गया सब लोग. मैंने नहीं बोला रे बाबा, यीशु में बाइबल में लिखा है. ऐसा ऐसा मत देखो जैसा मैं और जॉन डैनियल कैवल दोनों बैठ के लिख दिया वो बाइबल में. नहीं किया यीशु ने. हाँ मां जब तुम बोलती तो मैं करूंगा. नहीं किया यीशु ने, नहीं किया. यीशु ने बोला तेरे से वैसे क्या काम है, मेरा टाइम नहीं आया. मेरी रिकॉग्नाइज्ड. और मरियम इस बात को समझ, You know special about Mary? आप जानते हैं मरियम की एक विशेषता थी। She was a woman of strong faith in God's word. देखिए, वो एक ऐसी महिला थी जिसका परमेश्वर के वचनों पर बहुत ज्यादा मजबूत विश्वास She था। was tremendous servant of God. और वो सच में परमेश्वर की बहुत ही अद्भुत अच्छी ऐसी सेविका थी। She never said, I am goddess, you pray to me. She herself was an awesome servant of God. देखिए, मरियम ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूं, तुम मेरी आराधना करो। हम देखते हैं मरियम खुद भी एक बहुत ही बेहतर प्रभु की सेविका थी। She realized. और मरियम ने समझ लिया। She said to people, उसने कहा लोगों से, वो जो बोलता है वो करो, जो मैं बोलता हूं वो मत करो, जो वो बोलता है वो करो. हालेलुया. हालेलुया। क्योंकि वो जो बोलता है वो करता है, वो जो नहीं बोलता है वो नहीं करता है. समझदार को इशारा काफी है. हालेलुया. She recognized. अब यहाँ पे मरियम ने इस बात को जान लिया। Whatever he says, you do it. और उसने कहा जो कुछ वो तुमसे कहे वैसा करो। Why?
क्यों? She knows whatever Jesus says will happen. और वो जानती थी कि जो कुछ यीशु मसीह कहेगा वैसा हो जाएगा। When Gabriel came and said, she said, "Be it unto me according to the word." जब जिब्राइल फरिश्ता स्वर्गदूत आता है मरियम के पास, तो मरियम कहता है तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। Hallelujah. हालेलुया। She said, "वो जो बोलता है वो करो." यहाँ पे वो कह रही है कि जैसा वो कहता है वैसा करो। अच्छा, दूसरे के पास देख के बोलो, जो यीशु बोलता है वो करो। बोलो। हेलो, बाजू वाले को चेहरा देख के उसको बोलो, ऐसा नहीं क्या बोलते करो, चेहरा देखा ना उसको, उनको चेहरा है, उनका भी चेहरा है। हालेलुया, हालेलुया। Mary knew one thing being with Jesus Christ. यीशु मसीह के साथ रहकर मरियम एक चीज जानती थी, Key to miracle. उसको मालूम है चमत्कार की चाबी क्या है। चमत्कार की चाबी ये है, जो यीशु बोलता है वो करो, चमत्कार का ताल खुल जाएगा। और चमत्कार की चाबी यह है कि यीशु जो बोलता है वो करो, और अब तुम्हारे लिए चमत्कारों का दरवाजा और ताला खुल जाएगा। एक बार ताला खुल गया ना, चमत्कार का बारिश होने लगेगा हमारे ऊपर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Do whatever he says. और वो कहती है कि जो कुछ वो कहता है वैसा करो। And immediately Jesus looked around. और यीशु मसीह उसी समय देखते हैं, There were 7 stone jars. और वहां पे जो है 7 पत्थर के मटके थे, And they were filled with water to use to wash their hands and feet. और उसमें पानी भरा हुआ था ताकि शादी में जो लोग आए हैं वो अपने हाथ और पांव उससे धो सकें। And Jesus said, "Fill them with water." और यीशु ने कहा उन मटकों में पानी भर दो। अभी मेरा सवाल एक, पहले यीशु ने बताया मेरा समय नहीं आया, हाँ या ना? अचानक समय आ गया। अभी 5 मिनट पहले क्या बोला? हाँ, मेरा समय नहीं आया, अचानक समय आ गया, पानी भरो उसके अंदर। अरे 5 मिनट पहले समय नहीं आया, अब समय आ गया, कैसा आ गया? सिंपल, जब यीशु के लोग उसके वचन के मुताबिक करने लगता है ना, जो समय कल का था वो आज ही आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर विश्वास पे खड़ा होके जो यीशु बोलता है वो करते करते हैं ना लोग, तब कल का समय आ जा सकता है आपकी जिंदगी में। आमेन, प्रेज गॉड। Evangelist Ram Babu welcomes you to Face with Jesus conference on the 4th and 5th of August. Venue is Damodar Hall, N.M. Joshi Vidya Sankul, Dr. Baba Saheb Ambedkar Road, Parel, East Mumbai. Come and meet Jesus face to face and be transformed and receive your miracles and anointing. Rise up.